So good morning students, today we are going to start our chapter 3 of class 12 chemistry, that is electrochemistry. Now as the word indicates, ये जो word electrochemistry मैंने लिखा इसका meaning क्या है, means how this particular chapter is related in our day to day life. इस chapter को हम कैसे अपने daily life से relate कर सकते हैं, ये हम इस chapter में detail में पढ़ेंगे. Okay, so before we start our chapter we need to understand the meaning of this particular heading, that is electrochemistry. So actually the word electrochemistry is made up of two words, that is electricity and chemistry, and we know that electricity is nothing but the continuous flow of charges, or I should say electrons, and chemistry is nothing but the separate branch of science that deals with the different chemical changes. So electrochemistry is nothing but how we can relate chemistry and electricity, means what is the effect of electricity in chemical changes and how we can obtain chemical electricity or electrical energy from chemical changes. Okay, so we are going to just study in detail in this particular chapter. We all know that in chemistry means there are a number of chemical changes, and all chemical changes are not spontaneous. Spontaneous means as soon as I said the word spontaneous, so spontaneously or non-spontaneous, the word spontaneous means अपने आप होना. ठीक है. So the very first topic which I am going to discuss is about spontaneous and non-spontaneous reactions. As I just said, अभी जैसा मैंने बोला कि केमिस्ट्री में ढेर सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं. बेसिकली अगर आप ब्रॉड वे में डिवाइड करें उन केमिकल रिएक्शन को तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्पॉन्टेनियस और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस. अच्छा, अब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? वैसे रिएक्शन जो कि नेचर में अपने आप होते हैं, मीन्स उनको होने के लिए, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हमको कोई एक्सटर्नल एनर्जी या सोर्स प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है. सो अगेन आई एम सेइंग दैट spontaneous reactions are all those chemical reactions which occur on their own. They don't need any external source or energy in order to occur. And इसका just opposite क्या, non spontaneous means वो अपने आप नहीं होते हैं. We need to provide an external source or we need to provide an external energy in order to let them happen. Now on the what basis we used to classify a given reaction as spontaneous or non-spontaneous? That is the means you have learned in class 11 thermodynamics, that is the Gibbs free energy. We all know that this equation, very famous equation, delta G is equal to delta H minus T delta S. Now what is delta G here? Delta G is nothing but the Gibbs free energy. Delta is the enthalpy, and enthalpy we all know that enthalpy is nothing but the total heat content. This delta G is the Gibbs free energy. Delta H and this Gibbs free energy only tell us whether given the sign of this particular delta G, whether it is positive or negative. That positive or negative only is going to decide whether the chemical reaction will be spontaneous or non-spontaneous. Now delta is nothing but the enthalpy, and enthalpy is defined as the total heat content of that particular system or that particular reactant or product. जो हमारा reactant या जो product form होता है, ठीक है, तो उस टोटल हीट क्या है, उसके पास टोटल एनर्जी कितनी है उस रिएक्टेंट या उस प्रोडक्ट के पास, वो इनडायरेक्टली किससे रिप्रेजेंट होता है? डेल्टा एच से. टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन. कैपिटल टी, ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल टी सिंपली इंडिकेट्स, कैपिटल टी अगर कहीं पे भी कैपिटल टी लिखा हुआ है दैट सिंपली मीन्स वहां पे टेम्परेचर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, मीन्स जो साइंटिफिक यूनिट होता है दैट इज केल्विन. केल्विन में वहां पे टेम्परेचर लिखा हुआ है, ठीक है. या फिर अगर टी यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम जब भी टेम्परेचर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल ऑलवेज सब्स्टिट्यूट हियर द टेम्परेचर वैल्यू इन केल्विन, नॉट इन डिग्री सेल्सियस, नॉट नाइदर इन फ़ारेनहाइट. एंड डेल्टा एस, डेल्टा एस इज द एंट्रोपी. डेल्टा एस इज हियर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. नाउ व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज नथिंग बट द डिग्री और द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और ऑर्डरनेस. मीन्स ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है या फिर जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो रिएक्शन कितना रैंडमनेस जनरेट कर रहा है. वो जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो कितना रैंडमनेस जनरेट कर रहा है या फिर रैंडमनेस कम होते जा रहा है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, वो कौन बताता है? हमारा एंट्रोपी. सो एंट्रोपी इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ, और इट इज अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम. नाउ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. नाउ फॉर डेल्टा एच means actually this t is not going to be negative. ये जो t की वैल्यू, कैपिटल t की वैल्यू हमको पता है कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता इनफैक्ट, ठीक है. तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं जिस पे डेल्टा g की वैल्यू
या जिस पे डेल्टा जी जो मेरा है यहाँ पे दैट इज गिव फ्री एनर्जी, ये जो गिव्स फ्री एनर्जी इसका साइन किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड और आई शुड से द साइन ऑफ delta H and delta S. So now if delta H means what are the possibility of delta H, either it can be positive or it can be negative. Similarly this delta S can also become positive and negative. ये delta H, ये जो delta G का साइन है मेरा, ये पॉजिटिव नेगेटिव अगर हो रहा है तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, या इसका साइन किस पे डिपेंड करेगा, मेरा डेल्टा एच और डेल्टा एस पे, टी पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज हमको पता है कि टी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता इनफैक्ट, ठीक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है, जब इंथैल्पी की वैल्यू, जो इंथैल्पी चेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू जब पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो इट इंडिकेट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्लीज ऑलवेज कीप इन माइंड डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है दैट सिंपली मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड नेगेटिव होता है देन इट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, डेल्टा इज नथिंग बट कोई भी क्वांटिटी का होता है जो चेंज हो रहा है उसमें एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी। अच्छा, जब डेल्टा एच नेगेटिव हो रहा है, व्हेन योर डेल्टा एच इज बिकमिंग नेगेटिव, in that case that simply means HI, the value of enthalpy of the reactant that is greater compared to the enthalpy of your products formed, ठीक है, जो आपका enthalpy है reactants का उनका ज्यादा compared to the enthalpy of product. Obviously we know that in a given chemical reaction, ठीक, केमिकल रिएक्शन की बात है या कहीं पे भी एनर्जी को हम ना इधर क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर मेरा इनिशियल एनर्जी ज्यादा हो रहा है फाइनल एनर्जी से, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल एनर्जी जो मेरा मतलब कि टोटल एनर्जी इनिशियल साइड में था उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपका क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, ठीक है। दैट सिंपली मींस अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनिएगा, इनिशियल एनर्जी मेरा फाइनल के बराबर होना चाहिए, दैट इज द स्टैंडर्ड, एंड होता भी है, इनफैक्ट होता भी है। लेकिन यहाँ पे अगर इनिशियल एनर्जी फाइनल के बराबर नहीं है, या फिर मेरा फाइनल एनर्जी अगर इनिशियल से कम आ रहा है डेल्टा एच को नेगेटिव होने के लिए, तो उसका मतलब यही हुआ कि आपका जो रिएक्टेंट के पास टोटल एंथैल्पी है, टोटल एनर्जी है, प्रोडक्ट से वो क्या है, ज्यादा है, प्रोडक्ट के पास इनफैक्ट जो एनर्जी है वो कम है। इसका मतलब यही हुआ कि कुछ एनर्जी जो इनिशियल एनर्जी था, कुछ एनर्जी क्या हो गया, लिबरेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसके पास कंपैरेटिवली जो एनर्जी होगा दैट विल बी लेस, बिकॉज सम एनर्जी हैज नॉट बीन लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ other sound energy also, light energy also, or in the form of your chemical energy, or in the form of heat energy. There are the different sources in which your energy can be liberated. So this was the explanation why delta H is negative for exothermic reaction, ठीक है। Means in case of exothermic we know that energy is liberated in the form of heat. अब ये हीट के फॉर्म में क्यों लिबरेट हो रहा है, क्योंकि आपका जो इनिशियल एनर्जी होता है, मींस डेल्टा एच नेगेटिव क्यों हो जाता है, क्योंकि इनिशियल जो रिएक्टेंट्स का आपका इंथैल्पी होता है दैट इज लेस देन इंथैल्पी ऑफ योर प्रोडक्ट फॉर्म, एंड कुछ जो इस प्रोसेस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कुछ एनर्जी क्या होता है आपका दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से एच एफ कम हो जाता है एच की तुलना में, जिसकी वजह से आपका अल्टीमेटली डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है, एंड दैट डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली यू कैन कंक्लूड हाउ दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक के केस में वो कैसे पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं डेल्टा एस की, मींस एंट्रोपी की। एंट्रोपी कब पॉजिटिव होता है, एंट्रोपी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि द रिएक्शन, द रैंडमनेस ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीजिंग। पॉजिटिव मींस रैंडमनेस ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। मींस द रिएक्शन, द ऑर्डरनेस, और आई शुड से द डिसऑर्डरनेस, मतलब जो रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे जो रैंडमनेस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो डिसऑर्डरनेस है वो क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है, और ऑर्डरनेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सी, मैं यहाँ पे दो वर्ड बोल रहा हूँ, डिसऑर्डर एंड ऑर्डर। तो रैंडमनेस जनरेट होने का मतलब क्या है, रैंडमनेस इंक्रीज होने का मतलब क्या है, सिस्टम आपका बहुत ज्यादा डिसऑर्डर होते जा रहा है, ठीक है। डिसऑर्डर इंक्रीज होने का सिंपल सा मतलब ये है कि ऑर्डर कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी चीज को मैं दो वे में बोल रहा हूँ कि randomness of this reaction is increasing और disorderness is increasing, in other word orderness is decreasing। और जब नेगेटिव होता है, जब एंट्रोपी की वैल्यू, जब सिस्टम के एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इनफैक्ट आपका रैंडमनेस क्या होता है, डिक्रीज होता है। इनफैक्ट अगर जब आप
हायर क्लासेस में जाएंगे तो यू विल रीड दैट डेल्टा एस, जिस यहाँ पे हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिस्टम मीन्स कोई भी आपका यूनिवर्स जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी, अगर मैं यूनिवर्स की एंट्रोपी की बात करूंगा तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट कांट बी नेगेटिव, ठीक है। लेकिन सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, ये याद रखिएगा, जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, नेचुरल चेंजेस होते हैं, उन उन सारे केस में जो डेल्टा एस की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। डेल्टा एस सिस्टम की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, रेंडमनेस इंक्रीज होता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंपल वे में इंडिकेट करें कि एक झरना बह रहा है, ठीक है, तो झरने का अगर आप जो एल्टीट्यूड होता है, जिस एल्टीट्यूड पे जिस लेवल से पानी गिर रहा है, आप देखेंगे जितना शांत तरीके से वो ऊपर से गिरता है उतना ही वो क्या होता है, नीचे फैल जाता है, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो नेचर में कोई भी चीज हमेशा डिसऑर्डरनेस की तरफ मूव करती है, रैंडमनेस वो देखती है कि किधर रैंडमनेस उसको मिल रहा है, उसके तरफ वो मूव करती है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। जितना ज्यादा रैंडम होगा सिस्टम उतना ज्यादा एनर्जी डेसिपेट होगा, उतना ज्यादा सिस्टम मेरा क्या होगा, स्टेबल होगा। एंड एवरीथिंग in this universe or in this world used to move in order to gain stability, either हम हो चाहे कोई भी हो, in fact any non living object also, ठीक है। so delta s always keep in mind, delta s for universe it is always positive, but here we are talking about the system means that particular content, means that particular जो रिएक्शन हमारा हो रहा है। तो डेल्टा एच की वैल्यू एक्सोथर्मिक कब होगी, जब नेगेटिव होगा, मींस माइनस डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स एक्सोथर्मिक एंड माइनस डेल्टा एच रिप्रेजेंट द रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा जी पे, ठीक है। आफ्टर वी हैव मींस डिटेल डिस्कशन हुआ अभी डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू पे, अब बात करते हैं डेल्टा जी पे। तो अगर मेरे डेल्टा जी, इफ आई हैव टू मेक दिस डेल्टा जी नेगेटिव, ठीक है, सपोज करिए मेरा डेल्टा एच क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ठीक है। अगर मेरा डेल्टा एच नेगेटिव होता है, नेगेटिव होने का मतलब क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव रहे, डेल्टा एच मेरा नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एक्सोथर्मिक का ये मतलब नहीं है कि केवल हीट ही रिलीज हो रहा है, हीट तो एक फॉर्म एनर्जी का, एनर्जी के कई अदर फॉर्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस रिएक्शन में हो सकता है हीट के बजाय एनर्जी रिलीज हो लेकिन दूसरे फॉर्म में हो, ठीक है। तो डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एच पॉजिटिव हो, इन दैट केस आपका जो डेल्टा जी होगा वो 100% नेगेटिव ही होगा, बिकॉज ये जो माइनस साइन है टी नेगेटिव हो नहीं सकता, और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होगा तो अल्टीमेटली द टी डेल्टा एस का जो वैल्यू होगा, साइन होगा, वो नेगेटिव होगा। और डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी अगर वो नेगेटिव है, मींस मेरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उस केस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। और ये नेगेटिव जो होता है, जब आपकी गिव्स फ्री एनर्जी, जब आपका गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है, एनर्जी जहां पे आपका क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब आपका डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, जब डेल्टा एच की वैल्यू आपकी अगर पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इन द सेंस एंडोथर्मिक, ठीक है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू आपकी अगर पॉजिटिव हो जाती है और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इस केस में ये डिटरमाइन कर पाना कि आपका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये मुश्किल है, क्योंकि अगर इसका वैल्यू टी डेल्टा एस की जो कंबाइंड वैल्यू है ये डेल्टा अगर ग्रेटर होगा, in that case it will become spontaneous, and if the value of delta h is greater than the combined value of t delta s, then in that case it will be positive, that indirectly represent non spontaneous reaction. so exothermic reaction, जितने भी आपके exothermic reaction होते हैं वो क्या होते हैं, they are spontaneous I should say, means जहां पे भी एनर्जी आपका क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस का केस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस जो 100% नॉन स्पॉन्टेनियस हो उसके लिए केस क्या बनेगा, आपका डेल्टा एच पॉजिटिव रहे और साथ साथ में जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। और अभी मैंने बोला था वैसे रिएक्शंस जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए डेल्टा एस जो सिस्टम की वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो रहा है उसका मतलब क्या है, रैंडमनेस कम हो रहा है, हम उसको फोर्सफुली, हम उस सिस्टम को फोर्सफुली अनस्टेबल एनर्जी पे ही रोक रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव होने का मतलब रैंडमनेस हो रहा है, रैंडम हो रहा है सिस्टम आपका,
एनर्जी अपना डिसिपेट कर रहा है सराउंडिंग में इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। अगर मैं उस स्टेबिलिटी को रोक रहा हूँ यानी कि उसको डिस्टेबलाइज कर रहा हूँ या फिर उसके एनर्जी को डिसिपेट करने को मैं रोक रहा हूँ, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन नेचुरल प्रोसेस। तो अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा, सॉरी डेल्टा जी को अगर पॉजिटिव होना है तो उसके लिए मीन्स 100% पॉजिटिव होना है तो उसके लिए डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन साथ साथ में नेगेटिव। मीन्स अगर कोई ऐसा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, अगर कोई ऐसा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जहां पे रेंडमनेस कम हो रहा हो, मीन्स अगेंस्ट द नेचर, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका 100% नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिटेल डिस्कशन ओवर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बस इसका फाइनली आपको याद क्या रखना है कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी वैल्यू इज नेगेटिव एंड फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी वैल्यू इज पॉजिटिव। मीन्स ये फ्री एनर्जी होता है स्पॉन्टेनियस के केस में वो नेगेटिव होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के केस में वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे हो सकते हैं? मीन्स अगर ऑब्वियस सी बात है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ, वैसे रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं हो रहा है। तो उन रिएक्शन, वैसे रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं हो पा रहे हैं, या फिर ऑल दोज टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच डू नॉट ऑन देयर ओन, वी नीड टू सप्लाई एन एक्सटर्नल एनर्जी, and best example of this non spontaneous type reaction is electrolysis. Because in case of your electrolysis, for example take example of your electrolysis of water, H2O जो होता है वो खुद ब खुद H2 और O2 में डिसोसिएट नहीं होता। अगर वो खुद ब खुद डिसोसिएट होने लगता तो जितने भी आपके पास वाटर बॉडीज हैं वो आज लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, इनफैक्ट वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर ये H2O या फिर H2O का जो कन्वर्जन होता है दैट इज H2O into H2 plus O2, classify conductors, then they can be classified into two parts, that is first is metallic conductor and second is your electrolytic conductors. So first is very well known, the very first that is metallic conductor, that is very well known to you. Metallic conductor in fact जितने भी मेटल्स होते हैं जो कि गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनफैक्ट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में ज्यादा मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। इनफैक्ट मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कि आपके जितने भी नॉर्मल मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, दे आर द वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, ठीक है। वहां पे ना तो आपके आयंस मूव करते हैं ना तो एटम्स मूव करते हैं, इनफैक्ट दैट इज अ फिजिकल चेंज। अगर मैं मेटालिक कंडक्शन की बात करता हूँ, मेटालिक कंडक्टर की बात करता हूँ, तो जब इलेक्ट्रिसिटी उनमें पास होती है तो that involve only the motion of electron, there is nothing like motion or transfer of matter or mass. But in case of your electrolytic conductor मतलब कि वैसे कंडक्टर्स, मीन्स बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या हुआ, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और कुछ नहीं, हम इसके बारे में मतलब किसके बारे में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, we are just going to talk about electrolytes. अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए दो कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट इज इट शुड डिसोशिएट, इट शुड डिकम्पोज। इसको क्या होना पड़ेगा, डिकम्पोज होना पड़ेगा। जब मैं इस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस को अगर वो इलेक्ट्रोलाइट होना है तो जब मैं उसको वाटर में ऐड करता हूं तो वो क्या होना, मतलब उसको क्या होना चाहिए, उसको डिकम्पोज हो जाना चाहिए रेस्पेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में। अगर कोई केमिकल कंपाउंड पानी में डालते ही उसके एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही वो क्या हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, and moreover it is conducting electricity, then that particular chemical substance can be kept under the category of your electrolytes. अगर कोई एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोज हो रहा है आयंस फॉर्म में, दूसरी बात इट इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर कोई केमिकल सब्सटेंस आपकी ये दो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, उसके साथ साथ आपका जो आयंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट्स आपका
जो इलेक्ट्रिसिटी, नो डाउट दे यूज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जैसा मीन्स इन केस ऑफ योर मेटालिक कंडक्टर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता था, वहां पे आयंस का मोशन नहीं होता था, ना तो कोई मैटर का इन्वॉल्वमेंट होता, मैटर इन द सेंस कोई भी चीज जिसका मास हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का नो डाउट मास है, ऐसी बात नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स का मास नहीं, बट दैट इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द ions mass, okay, 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg, that is means that can be neglected, okay. But so in case of metallic conductor there is no involvement or the motion of matter, but in case of electrolytic conductors there is there occur the motion of ions, and what is the direction of motion of ions we will discuss just after a few minutes, okay. So electrolytes basically आपका यहाँ पे डिकम्पोज अगर हो रहा है आयंस में, और दूसरी बात तो कंडक्ट कर रहा है, तो हम उनको उस कैटेगरी में रख सकते हैं। एक और चीज, जो मेटालिक कंडक्टर अगर किसी मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं तो वो क्या होगा, एक फिजिकल चेंज होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर केमिकल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आयरन रॉड लेता हूँ तो उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा दैट सिंपली इन्वॉल्व द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है। मोशन का मतलब क्या हुआ, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस आयरन रॉड के, वो आयरन रॉड में ही रह जा रहे हैं, वो दूसरे केमिकल या फिर दूसरे अपने जो उनके आजू बाजू की सब्सटेंस या फिर रॉड है उसमें वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यहाँ पे क्या होता है, आपके आयंस मूव करते हैं, मूव करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, यानी कि मैटर मूव कर रहा है, और जैसे ही आपके आयंस मूव करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि देयर अकर a movement of ions from one place to another, or I should say transfer of electrons, that change become chemical change. So in case of metallic conductor physical change used to occur, and in case of your electrolytic conductor chemical change used to occur, ठीक है ना। क्योंकि मेटालिक कंडक्टर के केस में नो डाउट इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, मीन्स एक अपने जिस पर्टिकुलर कंडक्टर में मूव कर रहा है उसी में रह जाता है, जब तक वो दूसरे स्पीसीज में नहीं जाएगा हम उसको केमिकल चेंज के रूप में क्लासिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स मींस इलेक्ट्रोलाइसिस, बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इलेक्ट्रोलाइसिस हम जिस apparatus में करते हैं मींस दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए जो हमको रिक्वायरमेंट होता है, वी नीड टू इलेक्ट्रोड्स, दैट इज एनोड एंड कैथोड। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड इज that part of that electrode which is connected with the positive terminal and cathode is connected with the negative terminal। तो जैसे ये मेरा कोई बीकर है, इस बीकर में मैंने सपोज करिए ये मेरा this is my anode and this is my cathode, it is negative and this is positive, and here I have connected with a battery, okay, this is my current source, और ये मेरे क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिसके हेल्प से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या एक CuSO4 का सॉल्यूशन है या फिर किसी भी चीज का सॉल्यूशन, मान लीजिए सपोज करिए किसी भी चीज का नहीं, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक, कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे CuSO4 मैंने लिया, ठीक है। तो CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट, जब when I am going to add water to this, so this is going to dissociate in the form of Cu2 plus and SO4 2 minus। अब होगा क्या, इनसाइड दिस सॉल्यूशन एज सुन एज जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ, हमको पता है कि मेरे इस सॉल्यूशन में Cu2 प्लस के आयंस हैं और सल्फेट आयंस हैं, ठीक है। तो जो Cu2 प्लस के आयंस हैं वो कहाँ पे मूव करेंगे, दैट विल मूव टुवर्ड्स दिस कैथोड, दैट इज टुवर्ड्स दिस नेगेटिव, बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ये Cu2 प्लस किसके तरफ मूव करेगा, दैट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, and this sulfate ion will start moving towards your anode that is positively charged। अच्छा ये Cu2 plus इसके तरफ मूव क्यों कर रहा है, because Cu2 plus it is having deficiency of 2 electrons and in order to gain stability it needs 2 electron more। So what used to happen at this cathode, or I should say at this particular negatively charged, is that it gains 2 electrons, and it start depositing over this particular electrode, or it gets start depositing at this particular point, ठीक है। तो कॉपर क्या होगा, आपका कॉपर के जो आयंस हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, वहां पे वो अपना इलेक्ट्रॉन
दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल क्या है, उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है Cu2+ मीन द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज डिफाइंड एज रिडक्शन, द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज डिफाइंड एज रिडक्शन, एंड द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे सल्फेट आयन है, जैसे सल्फेट आयन क्या करेगा, एनोड के पास जाएगा अपना करस्पॉन्डिंग, जो उसके पास 2- मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, वो अपना यहाँ पे रिलीज कर देगा, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज हैपनिंग एट कैथोड, द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज हैपनिंग एट cathode that is defined as reduction, and the process of loss of electron and the process of loss of electron that is happening here at anode that is defined as the oxidation, ठीक है। so oxidation and reduction that is happening simultaneously, in fact that type of reactions are called redox reaction, जहाँ पे oxidation और reduction आपका simultaneously occur होता है, ठीक है। तो ये रही बात इलेक्ट्रोलाइसिस की। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अच्छा इलेक्ट्रोलाइसिस में अभी जैसे मैंने बात किया Cu2+ मीन्स मेरे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में केवल और केवल 2 आयंस थे, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे केवल और केवल 2 आयंस थे, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, लेकिन क्या हर केस में ऐसा जरूरी है कि वहाँ पे एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, नहीं, ठीक है। इनफैक्ट जो डेली लाइफ के या फिर ऐसे तमाम एग्जांपल से केमिकल चेंजेस होते हैं जहाँ पे एक से अधिक आपके पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे और एक से अधिक नेगेटिव चार्ज आयन होंगे, ठीक है। तो उसके केस में उसको कैसे हम मतलब एक्सप्लेन करते हैं या फिर उसको कैसे हम स्टडी करते हैं, उसको स्टडी करने के लिए प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी आया, ठीक है। उसको स्टडी करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। सो सपोज करिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, suppose we are doing electrolysis of NaCl solution, ठीक है। NaCl solution in the sense NaCl plus H2O is there, okay। now NaCl plus H2O we have taken means इसका मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। अच्छा, NaCl is a strong electrolyte means जैसे ये वाटर में डिसॉल्व होता है, ये आपका Na+ एंड Cl- के फॉर्म में क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। लेकिन H2O क्या होता है, H2O भी ब्रेक करता है बट नॉट अप टू दैट मच लेवल कंपेयर टू योर, जितना आपका NaCl डिसोसिएट होता है। मींस H2O जितना डिसोसिएट NaCl जितना डिसोसिएट होता है उसकी तुलना में आपका H2O उतना डिसोसिएट नहीं होता, बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो H2O किस फॉर्म में डिसोसिएट होता है, दैट डिसोसिएट इन द फॉर्म ऑफ H+ एंड OH- आयंस। अब बात करते हैं कि जब मैं इस सॉल्यूशन में जो NaCl+H2O का सॉल्यूशन है, इससे जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो वहां पे क्या होता है, अब देखिएगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, इससे पहले जो केस लिया था मैंने, वहां पे कॉपर आयंस थे और सल्फेट आयंस थे। इसके केस में सोडियम, 2 पॉजिटिव चार्ज आयन है, दोनों अलग अलग है, और 2 नेगेटिव चार्ज आयन है और दोनों क्या है, अलग अलग है। मीन्स एक मेरा Na+ है, H+ है, और एक Cl- और OH- है। अच्छा, अब इसके केस में मेरा कैथोड के पास कौन सा आयन जाएगा, कैथोड के पास जो कैथोड होता है आपका नेगेटिव चार्ज, कैथोड के पास नो डाउट आपका कोई पॉजिटिव आयन ही जाएगा, या तो Na+ जाएगा या तो H+ जाएगा। अब इन दोनों में से H+ या फिर Na+, इन दोनों में से कौन जाएगा। सिमिलरली एनोड के पास जो मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें से Cl- और OH- में से कौन जाएगा, ठीक है। तो Cl- या OH- दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं, बट वी नीड टू डिसाइड और वी नीड टू अंडरस्टैंड which ion will go first or which ion will be released or which ion will be released in the form of gas or whatever, which ion will be discharged, or I should, that is the correct word, discharge, ठीक है। तो Na+ और H+ आयंस में कौन सा ऐसा आयन है जो कि कैथोड के पास जाकर के वो अपना चार्ज रिलीज कर देगा, या फिर आई शुड से कि वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव आयंस में कौन सा ऐसा आयन होगा जो कि पॉजिटिव के पास जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जो potential in the sense potential difference, or in other word you can also understand potential as in the form of work done per unit charge, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कहिए या फिर पोटेंशियल कहिए, उसको दूसरे वे में आप कैसे समझ सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ वर्क, और वो वर्क कैसा है, पर यूनिट चार्ज जितना आप वर्क करते हैं, दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल इनडायरेक्टली सेज द एनर्जी, ठीक है। तो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है मींस कोई भी आयन
कोई भी जैसे Cl माइनस आयन है ये पॉजिटिव के पास जा करके, ऐसा नहीं है कि किसी भी पोटेंशियल पे या जो पोटेंशियल अप्लाइड हो रहा है, मीन्स जो बैटरी मैंने लगाया है, ठीक है, जो बैटरी मैंने लगाया है तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल लेवल रिक्वायर्ड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है जिसपे Cl माइनस यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी पोटेंशियल पे ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल, जो पर्टिकुलर पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है जिसपे ये Cl माइनस आयन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पे से Cl2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज योर डिस्चार्ज पोटेंशियल। नाउ अब ये डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहता है कि जिस आयन का, मीन्स अगर मैं Na+ और H+ की बात करता हूँ, दो की तुलना हो रही है, इन दोनों में से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, इन दोनों में से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली Cl माइनस और OH माइनस में से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पॉजिटिव के पास अप्रोच करेगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये एनर्जी मीन्स डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या है, सिंपल सा आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि H+ को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है और Na+ को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है डिस्चार्ज होने के लिए, H+ को एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है डिस्चार्ज होने के लिए, इसलिए ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन, ये इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है माइनस पे जाकर के कंपेयर टू Na+। सिमिलरली Cl माइनस और OH माइनस में, इसमें Cl माइनस का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो कम होता है। दैट सिंपली मीन्स कि Cl माइनस OH माइनस के कंपैरिजन में आसानी से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जा करके अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका होगा क्या इस रिएक्शन में, H+ कहाँ पे जाएगा, H+ जाएगा कैथोड के पास, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन will give H and this 2H ions means 2H hydrogen atom will make hydrogen gas, means at your negative, at your cathode hydrogen gas will be liberated and at your positive, अभी मैंने बोला कि इन केस ऑफ योर Cl माइनस और OH माइनस, Cl माइनस का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो कम होता है कंपेयर टू योर OH माइनस। तो चूंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है इसलिए इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए ये सबसे पहले जाएगा प्लस के पास, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये Cl2 गैस बना करके दैट विल बी लिबरेटेड। तो इनडायरेक्टली जितना भी H+ है दैट गेट्स लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, जितना भी Cl है दैट गेट्स लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस। नाउ आपके सॉल्यूशन में रह क्या जाएगा, आपके सॉल्यूशन में Na+ रह जाएगा और OH माइनस रह जाएगा। तो ये रिएक्शन कब तक प्रोसीड करेगा, ये रिएक्शन तब तक मीन्स तब तक होते रहेगा जब तक आपका H2 और Cl2 लिबरेट ना हो जाए। फाइनली आपका रिएक्शन में क्या रह जाएगा, Na+ और OH माइनस, दैट इज नथिंग बट सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि लास्ट में आपका रिएक्शन के लास्ट में पाउडर के फॉर्म में वो बचा रह जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग योर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। आई होप आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब समझ में आया होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल और कुछ नहीं है, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है गिवन आयन को डिस्चार्ज होने के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जो भी आयन आपको जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है गिवन आयन को डिस्चार्ज होने के लिए एक गिवन इलेक्ट्रोड पे। एक और चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी, कि ये जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है हर आयन का दैट इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, मींस Cl माइनस सॉरी H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है सोडियम के कंपैरिजन में, लेकिन कैसे इलेक्ट्रोड्स के पास, जब when we use platinum as our electrode, जब हम प्लेटिनम मेटल का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे उस केस में आपका जो H+ आयन होता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है कंपेयर टू योर Na+। हो सकता है कि अगर हम दूसरा इलेक्ट्रोड यूज करें तो उसके केस में रिवर्स हो जाए कि सोडियम आसानी से अपना डिस्चार्ज हो जाए और H+ आसानी से ना डिस्चार्ज हो पाए, ठीक है। तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल इज क्लियर टू यू। डिस्चार्ज पोटेंशियल इज नथिंग बट द एनर्जी रिक्वायर्ड, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है गिवन आयन को करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड के पास जाकर के इलेक्ट्रॉन गेन करना या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है। तो दैट इज डिफाइंड एज योर डिस्चार्ज